નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને ઝટકો લાગ્યો છે. મોરબી કોંગ્રેસમાં રાજીનામાનો દોર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. મહામંત્રી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ચેતન એરવાડિયાનું રાજીનામું. અગાઉ પૂર્વ પ્રમુખ જયંતિ પટેલે રાજીનામું આપ્યું હતું. ચેતન એરવાડિયા, અશ્વિન વિરજા, પ્રકાશ બાબરબાનું રાજીનામું. કિશોર ચીખલિયા ભાજપમાં જોડાયા હતા. તો મોરબી કોંગ્રેસમાં ભંગાણ. ફરી એક વખત કોંગ્રેસને ઝટકો. રાજીનામાનો દોર અહીં યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. મહામંત્રી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ચેતન એરવાડિયાએ રાજીનામું આપ્યું છે. અગાઉ પૂર્વ પ્રમુખ જયંતિ પટેલે રાજીનામું આપ્યું હતું અને હવે પ્રમુખે રાજીનામું આપ્યું છે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ચેતન એરવાડિયાએ રાજીનામું આપી દીધું છે. જોકે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે તેઓ શું ભાજપનો હાથ થામશે કે કેમ. આ સિવાય જે અન્ય આગેવાનો છે તેમના નામ પણ તમને જણાવી દઈએ. અશ્વિન વિરજા, પ્રકાશ બાબરાનું રાજીનામું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. અમારા સંવાદદાતા અતુલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. અતુલ, કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો મોરબીમાં, શું જાણકારી? ચોક્કસથી દીપા, આજે કોંગ્રેસમાં આજે કહી શકાય કે પૂર્વ જે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હતા અને જે પ્રખર કોંગ્રેસી કે પણ કહેવામાં આવતા હતા કે જેઓ કોંગ્રેસમાંથી પણ 1996 થી સતત વિધાનસભા પણ લડી રહ્યા હતા, જયંતિભાઈ જયરાજભાઈ પટેલ, તેઓએ રાજીનામું કરી દીધું હતું. અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસનો જે આંતરિક કલેશ છે તે પણ બહાર આવ્યો હતો, જેને લઈને આજે જે મહામંત્રી જે કોંગ્રેસ શહેરના ચેતનભાઈ એરવાડિયા, અશ્વિન વિરજા અને પ્રકાશ બાબરવા જે છે એવા જુદા જુદા હોદ્દેદારો જે છે તેની પણ રાજીનામા પડી ગયા છે. તો હજુ પણ જે અન્ય સદસ્યો જે છે તેના પણ રાજીનામા પડવાનો સિલસિલો યથાવત છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસમાં નવા પ્રમુખ તરીકે કિશોર ચીખલિયાની વરણી કરવામાં આવી હતી ને તેને લઈને પત્રકાર પરિષદ પણ કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા સંબોધવામાં આવી હતી. ત્યારે જે રાજીનામા આપેલા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને આ તમામ સદસ્યો છે તે ટૂંક સમયમાં જ કેસરિયા કરે તેવી પણ પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. દીપા, આભાર અતુલ જાણકારી આપવા માટે. હવે આગળ વાત કરીશું લોકસભા ચૂંટણીની. લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે પ્રદેશ ભાજપ એક્શન મોડમાં. ભાજપે સેન્સની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. રાજકોટમાં પ્રદેશ કાર્યાલય પર સેન્સની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પીએમના પ્રવાસ બાદ સેન્સની પ્રક્રિયા આરંભાઈ. દાવેદારો સમર્થકો સાથે સેન્સ પ્રક્રિયામાં જોડાશે. રાજ્યસભાના સાંસદ મયંક નાયક સેન્સ લેવા રાજકોટ પહોંચશે. બક્ષીપંચ મોરચા મયંક નાયકનું સ્વાગત કરશે તેવી જાણકારી મળી છે. રાજકોટ કમલમ કાર્યાલય ખાતે ચૂંટણીના ઢોલ ઢબુક્યા. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ઢોલ વગાડવામાં આવ્યા છે. અમારા સંવાદદાતા અંકિત જોડાઈ ગયા છે, વધુ જાણકારી તેમની પાસેથી લઈએ. અંકિત, ચૂંટણી માટે હવે રણશીંગુ ફૂંકાઈ ગયું છે. આ સેન્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, શું વિગતો? ચોક્કસ ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 2024ની જે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને આ ચૂંટણીને જ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની જે તમામ જે લોકસભાની બેઠક છે ત્યાં આજરોજ નિરીક્ષકો છે તે કમલમ ખાતે આવી પહોંચશે ને ત્યારબાદ એક બાદ એક જે દાવેદારો છે તેમને પોતાના સમર્થકો સાથે સાંભળવામાં આવશે. આ સેન્સની જે પ્રક્રિયાની જો વાત કરવામાં આવે તો 2 દિવસ સુધી આ પ્રક્રિયા છે તે ચાલવાની છે ને ત્યારબાદ ગુજરાત પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની જે બેઠક છે તે મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને મળશે ને ત્યારબાદ જે કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક છે તેમાં તમામ જે લોકસભા સીટના જે દાવેદારો છે તેમાંથી 3 વ્યક્તિઓના નામોની જે પેનલ બનાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ પેનલ છે તે કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની જો વાત કરવામાં આવે તો 2019ની સરખામણીએ 2024માં હાલ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થિતિ ખૂબ જ સારી કહી શકાય તે પ્રકારની જોવા મળી રહી છે, કારણ કે 2017 બાદ જે 2022ની ચૂંટણી આવી હતી ને તેમાં જોઈ શકાય કે કઈ રીતે कायाकल्प हो रहा है. ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा. स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. ये कायाकल्प
उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों, उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो। लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का
इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक-टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज
रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, यह हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।